Hello everyone. Today we are going to discuss about the elements of directing. Actually there are four elements of directing, that is supervision, motivation, leadership and communication. Without these four elements, the directing function is useless. We have to use these four elements if we want to accomplish our organizational goal. First one is supervision. In supervision, what is supervision? Supervision means keep a watch on each and every activity of the subordinate. Means we have to see whether they are doing work according to the given instructions or not. Right? So this is called supervision. We have to keep a watch. What supervisor will do in the organization? He have to keep a watch on each and every activity of the subordinates, what they are doing. Motivation, inspiring subordinates towards their work. Means what we does in motivation, if someone is not doing the work properly, then we have to motivate them that you have the potential to do the work. आपके अंदर potential है, आप कर सकते हो. मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप कोई भी काम करते हैं, अपना कोई भी काम करवाते हैं लोगों से, अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं then the work can be done in a very effective manner. ऑर्गेनाइजेशन में हम दो तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बाय गिविंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम उनकी सैलरी हाइक कर सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, अलाउंसेस बढ़ा सकते हैं, टीए बढ़ा सकते हैं. तो उससे हमारा जो वर्कर है, सबॉर्डिनेट है, वो मोटिवेट होगा. वेरेज इन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यहाँ पर हम पैसा ना देकर उनको काइंड में मोटिवेट करते हैं. लाइक उनको कोई रिवॉर्ड देना, अवार्ड देना, सर्टिफिकेट्स देना, उनका पार्टिसिपेशन कराना डे टू डे एक्टिविटीज़ में. दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. तो हम इनके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं काम करने के लिए. नेक्स्ट इज़ लीडरशिप. लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंस सबॉर्डिनेट्स टुवर्ड्स द वर्क. उनको काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करना. व्हाट इज़ लीडर? लीडर क्या करता है? आपका मान लीजिए आपका कोई लीडर है, क्लास का मॉनिटर होता है. व्हाट मॉनिटर विल डू? मॉनिटर विल इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास. तो दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप. आपके यहाँ जो जितने भी लीडर्स होते हैं कंट्री में, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक टुवर्ड्स देयर नेशन. राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. In communication we can say that what presently right now what I am doing with you, मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, it is a communication. I am passing my information, I am expressing my views, opinions to you. So communication is a two-way process. ये एक two-way process होता है where the person exchange their ideas, opinions and information to each other. So these are the four elements of directing. Without these four elements the directing is useless. Even we can't think about directing. right? अगर हम इसको एक मूवी की तरह समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि what the director of a movie does, he supervise, he motivate, he lead, he communicate the things. Then only a film can be successful, I should say. Right? So these are the elements of directing. After that, first element is supervision. So we will have to study about the importance of supervision. What are the importance of supervision? इसके क्या supervision के क्या importance होंगे? First one is link between workers and management. अगर हम किसी के ऊपर supervision करते हैं तो उससे वो एक क्या काम करता है? It is a link in between a workers and management. वर्कर्स अपनी बात बता सकते हैं और मैनेजमेंट अपनी बात वर्कर्स को बता सकते हैं. तो सुपरविजन क्या होता है? सुपरवाइज़र वर्क करता है एज अ लिंक इन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट डायरेक्ट वर्कर्स को आकर नहीं बताएगा, वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे. सो हु इज़ देयर इन बिटवीन टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, to pass on the information from workers to management and management to workers? Here is supervisor. So this is the first importance of supervision. Next is issuing instructions. Supervision, जो सुपरवाइज़र होता है उससे हम अपने इंस्ट्रक्शंस को आसानी से इशू कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं दैट हाउ यू हैव टू डू द पर्टिकुलर वर्क एंड विच स्ट्रेटजीज यू हैव टू यूज़. फैसिलिटेट कंट्रोल. फैसिलिटेट कंट्रोल मीन्स सुपरविजन में हम क्या करते हैं, उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं वेदर दे आर डूइंग वर्क और नॉट. सो कंट्रोल करते रहते हैं, हम चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि ये अपना काम
अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाय परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, हम उनका परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करते हैं बाय सीइंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी, राइट। सो वी कैन, इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट कंट्रोल, टू चेक एवरीथिंग। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। सुपरविजन से क्या होता है, अगर आपके ऊपर हमेशा देर इज़ अ कैमरा ऑन यू फॉर 24 आवर्स, देन डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली मेंटेन अ डिसिप्लिन इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर एक ना एक डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करेंगे, बिकॉज यू नो दैट देयर इज़ समवन हु इज़ ऑलवेज देयर ऑन मी, हु इज़ देयर ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन मी। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन मेंटेन करने में सुपरविजन हमारी हेल्प करता है। फीडबैक, अगर आप सुपरवाइज करते हैं किसी को भी, तो उससे क्या होता है, इफ़ द वर्कर इज़ नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, देन यू कैन आस्क वाई यू आर नॉट डूइंग, right, then he can give you the feedback also that this is my problem, and randomly at the on the spot you can sort out the supervisor can sort out the problem. So it helps in giving the feedback also. Improved motivation. In supervision, what supervisor will do, he keep a watch on each and every activity, and if the person is not able to understand, then the supervisor is there to guide them. So it helps to improve the motivation in the subordinates as well. नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर रिसोर्सेज का बहुत बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन होता है, बिकॉज सुपरवाइजर इज़ देयर टू गाइड यू। वो आपको पहले से बता चुका होता है दैट इन वॉट वे यू विल हैव टू डू द वर्क, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग द वर्क देन ही ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू यू। And I told you in the previous chapter that a trained person always utilize the resources in the best possible manner. So we can say that if supervisor is there, if there is a supervision, if there is a continuous supervision on any subordinate, on any people, then the resources cannot be waste. The subordinate always try to use the resources in the best possible manner. So these are the importance of supervision.